Welcome, dear. All right, to God be the glory, and good evening to every one of you. परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और आप सभी को शुभ संध्या। Thank you, Enosh, for your very warm welcome. भाई इनोस, आपके स्वागत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you for that young brother who prayed, Abhishek. Huh? Yes. Is he a youngster? Yes, he is just 21-year-old, and his body is totally paralyzed. I know. He's disabled. I know. I could understand it from his voice because it's the second time he's praying. Yes. I did understand it from his voice. So God bless you, Abhishek, and God has a great purpose concerning you in your life. और अभिषेक, आपको प्रभु बहुत ही आशीष देवें और आपके जीवन के लिए प्रभु का एक मुख्य उद्देश्य है। It was very lovely. Yeah, it was very lovely to hear you pray. Last time also you prayed a few weeks back. At that time itself, I wanted to ask Deepu, but today I asked him. So it was very nice to hear you pray, short and sweet, and God hears such prayers. और आपने जो प्रार्थना किया है, इस प्रकार की प्रार्थना बहुत ही मधुर आवाज में आपने प्रार्थना किया, साथ ही साथ संक्षिप्त में और मधुर प्रार्थना के लिए प्रभु हमारे शब्दों को नहीं, बड़ा हृदय को जांचता है और ऐसी प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण भी करते हैं। All right, wonderful. So we are still continuing on the first question. Who is this God who keeps us? और अभी हम लोग अभी भी पहले ही सवाल में चल रहे हैं कि वो परमेश्वर आखिर कौन है जो हमारे रक्षा करता है। चल रहे हैं, that is a nice term. We are still continuing from Psalm 121. We are trying to answer the three questions. We are still in the first question over the last, I think this will be the third week. Third, exactly. और जिस प्रकार से हम सभी को स्मरण है कि प्रभु के इस वचन में जो पहला सवाल है, जिसमें अभी तक हम लोग चल ही रहे हैं, मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं कि प्रभु जो हमारा रक्षक है वो कौन है। Because there is so much to speak about this omnipotent God. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके बारे में बहुत कुछ कहना लाजमी है। Right. I try and prepare as much as possible and to try and keep it as short as possible, but keeping it as short has taken me 3 weeks. और जिसको मैंने सोचा था कि संक्षिप्त में जितना हो सके संक्षिप्त में करूंगा, लेकिन फिर भी तैयारी के साथ में जब उसको संक्षिप्त में करने का प्रयास किया, 3 हफ्ते बीत गए। So hopefully today we should conclude it, and I trust the Lord will allow us to finish this and move to the second question. और मैं प्रभु में ऐसी उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ कि आज उस एक सवाल, पहले सवाल में जिसमें हम लोग चल रहे हैं, उसको प्रभु हमारी सहायता करेगा कि उसको समाप्त करेंगे और उसके बाद अगले सवाल में हम लोग जाएंगे। I want to thank the Lord. I want to thank Deepu. I want to thank the Christian Assembly Datia, Madhya Pradesh, for having invited me on this platform for this study series. और इस श्रृंखला रूप अध्ययन को करने के लिए दतिया असेंबली ने मुझे जो आमंत्रित किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं और इस मीटिंग के जो जिम्मेदार भाई लोग हैं उनके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। I also want to thank every one of you who have taken time to sit in God's presence, not only to sing, but also to study from God's word. और साथ ही साथ आप सब लोग जो प्रभु का वचन को सीखने के लिए समय निकाल करके इकट्ठे हुए हैं, प्रभु का वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए और मेरे साथ अध्ययन करने के लिए आप इच्छुक हैं, इसलिए धन्यवाद। You see, with this omnipotent God, nothing is too big for our God to accomplish or to do. और जो हमारा परमेश्वर, सब शक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी कार्य करना असंभव नहीं है। And nothing is too little for him to use in doing things.
और कुछ भी करने में हमारे परमेश्वर के लिए वो सर्वशक्तिमान है। कुछ भी छोटा नहीं है और कुछ भी बड़ा नहीं है जो Yeah. उसको वो ना कर सके। Yeah, that's right. All right. I do not know if I've used this illustration earlier. My memory fails me, but I thought this is a very appropriate illustration. So allow me to use this again if you have heard it earlier. अगर आपने पहले इस उदाहरण को यदि आपने पहले सुन लिया हो तो मुझे अनुमति फिर से दें कि मैं इस उदाहरण को आपके साथ फिर से साझा करूं, क्योंकि मेरा जो याददाश्त है वो कमजोर है। There was a new missionary by the name Jackson. एक प्रभु का सेवक, एक मिशनरी थे जिनका नाम जैक्सन था। And as soon as he came into this ministry, he was assigned a car. और जैसे ही वो सेवकाई में आए उनको एक कार मिला। Now, the problem with this car is it would not start because normally in the cars, when you press the ignition or when you turn the key, it has to start, is it not? और सामान्यतः जो कार होती है उनमें जब हम उस चाबी को जब हम मरोड़ते हैं तो वो सामान्यतः गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। But this car never started with the ignition or with the key. और लेकिन ये जो कार है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी वो चाबी लगाने से और मरोड़ने से। So if he has to use the car, he has to start the car, is it not? अगर उसे कार का इस्तेमाल करना है तो उस कार को स्टार्ट करना होगा। So he devised a plan. उसने एक योजना बनाई। He went to a school which is near his house. उसके घर के पास में जिस एक विद्यालय था वहां पर गया। He got permission to take a few children out of the class. और उसने अनुमति लिए मांगा स्कूल में जाकर के कि कुछ वैसे कि बच्चों को जो है उस क्लास से बाहर आने के लिए। And then he made the children push the car and the car started. और उसके बाद में उसने उन बच्चों से कहा कि आप जो है इस कार में धक्का लगाओ, और उन्होंने जब धक्का लगाया तो कार स्टार्ट हो गई। Because this is near his house, every day when he leaves the house, he will call the children, push the car, and he will start and go. और वो उसका घर के पास में विद्यालय था, इसलिए वो हर दिन जो है जाया करता था और वहां पर जा करके बच्चों को बुला करके हर दिन धक्का दिलवा करके उस गाड़ी को स्टार्ट करके ले जाता था। As a missionary, as an evangelist, he goes visits different places, different people, and wherever he stops the car, he does not switch off the ignition. He parks it in such a way with the brakes on so that it keeps running till he finishes his prayer, his fellowship, then comes back and then sits in the car and moves the car. और उसके बाद में जहाँ कहीं भी वो एक इवेंजलिस्ट थे और जहाँ कहीं भी सेवकाई के लिए वो जाया करते थे, उनका क्या काम था? उनका काम ये था कि वो जहाँ कहीं भी सेवकाई के लिए प्रार्थना के लिए यदि जाया करते थे तो वो जो जहाँ कार को रखते थे वहां पर वो ब्रेक लगा करके उस कार को रखते थे, लेकिन उसका इंजन बंद नहीं करते थे। और उसके बाद में प्रार्थना करना वचन को सेवकाई के बाद में फिर वो उस कार में बैठ करके पुनः वापस घर पर लौट के जाया करते थे। If he has to stop the car, then he will stop it at a slope. He will stop it at a slope, because once he comes back, he can sit and the car automatically will go down. Then he will start the car and go. और उसके बाद में कभी कभी वो ऐसी जगह पर जहां पर ढड़क होती है या टेक होती है वहां पर वो उस गाड़ी को लगा देते थे, जिससे कि मीटिंग के बाद जब वो आए तो जैसे ही वो उस गाड़ी में बैठेंगे तो वो गाड़ी अपने आप नीचे की ओर धड़कने लगेगी, और जैसे ही वो नीचे की ओर जाएगी तो वो गाड़ी पुनः स्टार्ट हो जाएगी। So this missionary used this practice for 2 years. और ये जो मिशनरी थे इन्होंने ये वाले इस प्रकार का काम कम से कम 2 सालों तक किया। After 2 years, he fell sick. और 2 साल के बाद में वो बीमार हो गए। And then he had to leave that place. उसके बाद फिर उन्हें उस स्थान को छोड़कर जाना पड़ा। Now, in his place, another evangelist or another missionary came. और उसके स्थान पर एक दूसरे इवेंजलिस्ट और मिशनरी आए। So when the new missionary came, the old missionary, the missionary that was going out, he handed over the car and he told the problem of the car to this new missionary. और उसके बाद में जो कार थी, जो पुराना जो सेवक थे वो वहां से जा रहे थे, और जाने से पहले वो जो कार थी उस सेवक को जो नए आए थे उनको देते हुए कहा, और साथ ही साथ उस कार की जो खूबी और कमी थी उस काम को भी उसने बता दिया। So this new missionary took the key, he tried to start, it didn't start.
Then he opened the bonnet in front of the car and he looked inside. और उसके बाद में जो नया जो वहां पर सेवा करने के लिए आए थे, उन्होंने उस कार का जो बोनट खोला और उसके बाद में उसमें देखा। And then when what he saw, he turned and looked at the evangelist that is going, the missionary that is going. He says, I think there is only a problem with the loose cable. और उसके बाद में जो पुराने जो मिशनरी थे, जब वो वहां से छोड़ करके जा रहे थे, उसमें जब बोनट को खोल करके देखा और इस बात को पता लगा करके उन्होंने जाते हुए जो सेवक है उनसे कहा, मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें जो समस्या है वो कुछ और नहीं वरन जो जो उसका जो जोड़ है, केबल वो ढीली हो गई है। So this new missionary, he went, he identified, and then he just twisted the one of the cables there. When he twisted the cable, the car started immediately. और जैसे ही उस जो नया मिशनरी आए थे, उन्होंने देखा बोनट को खोल करके, वहां पर जा करके जैसे तैसे औजार लेकर के उसको जो केबल जो ढीला था उसको कस दिया और उसके बाद तुरंत कार स्टार्ट हो गई। For 2 years, this previous missionary, man of God, was needlessly troubling others, and he did not know it was just a small problem with the cable. और लेकिन जो पुराने जो मिशनरी थे, उनको कम से कम 2 सालों तक बिना जरूरत के दूसरों को वो जोखिम में डाल करके इस कार को जो है स्टार्ट कराने के लिए परेशानी पैदा करते थे। You see, all this while the power was there in the car. और यद्यपि देखिए कि वो जो शक्ति उस कार में स्टार्ट करने की उसके अंदर ही थी। All the time the power was there. और हर एक समय जब जब उन्होंने गाड़ी को चलाया, स्टार्ट किया, वो सब वहां उसमें था। Only a small loose connection kept this earlier missionary from making the power to work. और लेकिन देखिए मेरे प्यारो, ये जो केबल है वो जो ढीली होने के कारण वो जो पहले वाले मिशनरी जिनको वो कार मिली थी 2 वर्षों तक, उसको वो अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाए, उसको चला नहीं पाए, उनको समस्या बनी रही। Now, let's read just a couple of verses based on this illustration, which I told you now. Ephesians chapter 1, verses 19 and 20. इसी के आधारित आइए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। इफिसियों 1 अध्याय का 19 और 20 पढ़ लेंगे। Yeah, Ephesians chapter 1, verses 19 and 20. इफिसियों लिखा 1 है, का 19 और 20। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति। Enough. Thank you very much. Thank you. That is the verse I wanted. How tremendous is the power available to us who believe in God. देखिए मेरे प्यारों, जो यहाँ पर बात लिखी गई है वो, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। You see, the power was there in the car already. Only thing required is a little touching of the cable, and the power came back. और लेकिन देखिए मेरे प्यारों, जो पहले वाले मिशनरी थे उनको ये इस बात का पता नहीं था, वो इससे अनजान थे। हर समय गाड़ी के अंदर वो पावर थी कि वो इससे चालू कर सके, स्टार्ट हो सके, लेकिन वो स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको जो लूज थी, जो केबल जो है वो ढीली थी, उसको कस नहीं पाए। Similarly, brothers and sisters, dear believers, when we make our firm connection with God, His life, and His life, when we make our firm connection with God and His life, you know what happens? Power flows through us. लेकिन मेरे प्यारो, उसी प्रकार से जब हम अपने प्रत्येक दिन के जीवन में परमेश्वर के साथ में हमारा जो कनेक्शन होता है, जो मिलजोड़ होता है, वो जब हम टाइट रखते हैं और अच्छे से पकड़ रखते हैं उसकी, तो क्या होता है, हमारे द्वारा जो परमेश्वर की शक्ति है वो निकल करके बाहर निकलती है। You see, our connection is our fellowship with God. When we renew our fellowship with God, when we revive our fellowship with God, have a close connection with God, then what happens? His life, His power starts flowing through us. So we become powerful disciples
of the Lord Jesus Christ in this world. You understood? इसलिए मेरे प्यारो देखिए, जब हम हमारे जीवन के द्वारा इस चीज को, हमारे जीवन का जो कनेक्शन, मजबूत कनेक्शन प्रभु से कैसे है, हमारी संगति, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के साथ में संगति को जितना मजबूती के साथ बनाए रखेंगे, उतने ही मजबूती के साथ में जो परमेश्वर की सामर्थ है, जब हम उसको बुलाएंगे, जब हम उसको अपने जीवन में पकड़ के रखेंगे, मजबूत पकड़ बनाए रखेंगे, क्या होगा, मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ निकलेगी। और जब सामर्थ निकलेगी, तब हम प्रभु यीशु के सच्चे और प्रभु के जो है विश्वास योग्य चेले ठहराएंगे। You see, that is why I'm thinking now, as I speak, I'm thinking now that it has taken us more than 2 weeks or 3 weeks to study the omnipotence of our God. और देखिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखते हैं कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर को जो है, कौन है वो सर्वशक्तिमान, उसकी शक्ति को समझने में 3 हफ्ते बीत गए। All right, so we will continue on that particular, the first question, the omnipotent God who keeps us. और हम उस सवाल पहले में जिसमें हम लोग अभी तक जूझते आए हैं, उसको हम लोग स्मरण करके उससे उसी पर चलेंगे आज भी, कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारा रक्षक है। All right, from the scripture we all know that God created the nations. प्रभु के वचन से हम इस बात को पता लगाते हैं कि परमेश्वर ने देश देश के लोगों को बनाया। From the scripture, particularly the Old Testament, we know that God can bring one nation to power, God can reduce another nation. और हम परमेश्वर के वचन में खासतौर से पुराने नियम से इस बात को पता लगाते हैं और जान पाते हैं कि परमेश्वर ही है कि एक देश को जो है बढ़ाता है और दूसरे देश को कमजोर और निर्बल करता है। And consistently, meaning continuously without a break, God can show his power over the world history. और हम देखते हैं कि लगातार रीति से हम इस चीज को समझते हैं कि परमेश्वर उसके द्वारा हम देखते हैं प्रभु अपनी सामर्थ को जो है उसके द्वारा फहराते रहते हैं। Now consider the nation of Israel. इस्राएल के देश को आप मन में रख लीजिए। I'm going to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। And anyone can answer that question. Unmute and you can answer. आप में से कोई भी उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। All right. Now, from whom did this great nation Israel spring up from? और इस्राएल का जो देश है, वह इस्राएली लोग कहां से निकल करके आए हैं? किससे निकल करके आए? That's right. So I hope you understood the question. From whom did this great nation spring up from? और किससे ये जो इस्राएल के जो नेशन है, देश है, वो निकल करके निकला है? इस्राएल नेशन का आरंभ कहां से? जगह नहीं, किसी से आरंभ हुआ। किस व्यक्ति से आरंभ हुआ? व्यक्ति का नाम सही रहेगा। किस व्यक्ति से? करेक्ट, याकूब से। अच्छा जवाब है, मगर अच्छा जवाब, सही जवाब नहीं है। अच्छा जवाब है, मैं वो जेकब के बारे में बाद में आऊंगा, मगर सही जवाब नहीं है। ट्राई, समवन कैन ट्राई। और भी कोई बता सकते हैं? कोई भी और कोशिश करें। जवाब सही है, लेकिन वो जवाब नहीं है जो जिसकी हम लोग तलाश में हैं। कोई और बता सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, very good, excellent. Abraham. From Abraham this nation of Israel started. और अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं कि इस्राएलियों का जो देश है वो निकल करके आया। All right, now tell me, between Abraham and Sarai, they were an infertile couple, isn't it? और अब्राहम और सारा, एक जो सारा को हम देखते हैं तो वो बांझ थी। Yeah, she was a barren woman. She could not bear because she's past the period of woman. She cannot even bear child. और हम देखते हैं कि सारा जो
बांझ थी, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी और वो बूढ़ी हो गई थी, इसलिए कि वो बच्चे को जन्म देने की अवस्था में नहीं थी, शारीरिक So, अवस्था उसकी बच्चे देने के लायक नहीं थी। so this couple, Abraham and Sarai, they left their homeland, their country, to follow the Lord into an unknown place. और इसीलिए हम देखते हैं कि अब्राहम और सारा ने अपने देश को छोड़ करके वो दूसरे देश में की ओर चले गए, एक अपरिचित देश, जहां पर जिनका कोई परिचय नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, ऐसे देश में परमेश्वर की आज्ञा मान करके अब्राहम और सारा चल दिए। All right. And then to both of them a child was born, is it not? और उसके बाद में हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर की ओर से उन्हें एक संतान दिया परमेश्वर ने। What was the name of the child? उस बच्चे का नाम क्या था? Isaac. Beautiful. Excellent. Excellent. All right. Now, Abraham and Sarai, though they were infertile at their advanced age, God blessed them with a son called Isaac. और यद्यपि हम देखते हैं अब्राहम और सारा को कि यद्यपि वो लोग जो है उनकी शारीरिक अवस्था बच्चे पैदा करने की और सारा की अवस्था गर्भ धारण करने की नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उन्हें क्या दिया? एक बच्चा दिया है, संतान दी। And now Isaac had a son whom the sister mentioned his name earlier, isn't it? Isaac had a son called Jacob. From Jacob came all the 12 tribes of Israel. और उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से उन्हें जो आशीष मिली, बच्चा मिला, उसके बाद जो सिस्टर ने नाम बताया था, ऐसा का बेटा याकूब हुआ, और याकूब से फिर सारे 12 गोत्र निकल कर, सभी 12 गोत्र निकल करके आए। You see, from an infertile couple, from a barren woman, you see, the whole nation of Israel came into being. देखिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे अभिभावक पति पत्नी थे जिनको बच्चा होने की अवस्था नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी स्त्री जिसको गर्भ धारण करने की शारीरिक क्षमता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने वहां से वो इस्राएल देश को निकाला है, वहां से इस्राएल देश जो है पैदा हुआ, परमेश्वर ने उन्हें चुना है और अस्तित्व में लेकर के आया। All right. Now listen very carefully. अभी ध्यान से सुनिएगा प्रियो। Now, the children of Israel, the whole nation of Israel, for 400 years were oppressed by a very powerful nation. और 400 वर्षों तक हम देखते हैं इस्राएल देश क्या हुआ, वो एक ऐसे देश के अधीनता में, ऐसे देश की गुलामी में था जो उनसे शक्तिशाली था। Yeah, so the next question to you, anyone can unmute and speak. Which is that powerful nation that oppressed them for 400 years? और उस आप में से उसका जवाब दे सकते हैं, कोई भी अपना माइक को खोल करके, कि वो कौन सा देश था जो इस्राएलियों को 400 वर्ष तक उनकी गुलामी में दबाए और बनाए रखा। मिस्र देश। मिस्र देश। Beautiful. बहुत खूब। बहुत अच्छा जवाब God दिया। bless you. Yeah, Misr Desh. So और Egypt. तत्परता के साथ में जवाब दिया आपने। Egypt. Egypt. You see, that was the powerful nation that oppressed the children of Israel for 400 years. और हम देखते हैं कि मिस्र वो देश है जिसने इस्राएली लोगों को, जो परमेश्वर के चुने हुए जन थे, उन्होंने क्या किया? 400 वर्षों तक अपनी गुलामी में इस्राएलियों को बनाए रखा। Now, who liberated them from that nation? और उस देश के गुलामी से किसने उन्हें छुटकारा दिलवाया? Who liberated them? अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने, मूसा ने Okay. Good. Moses is a good answer, very good answer. Moses and Aaron, but God spoke to Moses because
the children of Israel cried, their voices reached up to God. Then God spoke to Moses through the burning bush. And then God sent Moses and Aaron. And through Moses and Aaron, God liberated them from that powerful nation called Egypt. Is it not? Through the 10 plagues. और मेरे प्यारो देखिए, बहुत खूब आप लोगों के जवाब आए, मूसा और आरोन। यद्यपि सही जवाब ऐसा होगा कि मूसा और आरोन के जरिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को, जो मिस्र देश में फिरौन के गुलामी में जीवन बिता रहे थे, वहां से उनके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें आजादी दिलाई है। You see, just now we have considered how this powerful nation Israel came into being. और अभी हम इस चीज को देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस्राएलियों का देश किस तरह से अस्तित्व में आया। See, from Abraham and Sarai, who were barren, came that beautiful nation called Israel. और अब्राहम और सारा को हम लोग देखते हैं, जो बच्चे पैदा करने की जिनकी अवस्था नहीं थी, सारा जो है बांझ थी, लेकिन वहां से इस्राएली लोग अस्तित्व में आए। That is the omnipotence of God. वही परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का प्रमाण है। And they were under the powerful nation in those days. Egypt was the largest nation in the world. So, not for 1 year, 40 years, or 100 years, but for 400 years, they were slaves under Egypt. Now, God, the omnipotent God, liberated them, broke Pharaoh and his chariots, and then liberated his own children, you see. और मेरे प्यारो देखिए, कितनी अद्भुत बात है, ध्यान से सुनिएगा प्रियो। इस्राएली लोग 40 वर्ष तक नहीं, 100 वर्ष तक नहीं, 400 वर्षों तक ऐसे देश, एक महान देश के अधीन में थे। इस्राएली लोग वो अस्तित्व में आने से पहले हम देखते हैं, इस जो मिस्र है वो सबसे महादेश के नाम से जाना जाता था। ऐसे लोगों के अधीन में, ऐसे देश के अधीन में 400 वर्षों तक इस्राएली लोग रहे, लेकिन वहां से परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, अपने चुने हुए लोग इस्राएलियों को, फिरौन राजा को नाश करके, उसके रथों को, घोड़ों को, सैनिकों को समुद्र में नाश करके स्वतंत्रता दिलाई, छुटकारा देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। You see, from these two cases, you can understand very clearly, this omnipotent God that you and I worship can create a nation, and then in the second case, he can break a nation, a great nation. He can create a great nation, he can break a great nation. देखिए मेरे प्यारे, यहाँ से हम लोग इस सच्चाई को सीखते हैं कि वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसका मतलब है कि वो इतना शक्तिशाली परमेश्वर है, या भी वो किसी भी देश को जो है अस्तित्व में लेकर के बड़ा बना करके ला करके उन्हें महान बना सकता है, और दूसरी जगह वो एक महान देश को नाश भी कर सकता है। You see, that is why Moses and the children of Israel sing after their victory over Pharaoh and his chariots that followed them in the Red Sea. After their victory, they sing a song. So we're going to read a few verses from that chapter. और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मूसा और हारून, जब जिन्होंने इस्राएलियों को परमेश्वर ने जब जीत दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई, तब वो लोग एक गीत को गाते हैं, और इस गीत को हम लोग अभी कुछ वचनों को वहां उस भाग से देखने वाले हैं। Now, when you read those verses, read it very carefully. You will see how beautifully they describe this omnipotent God. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं तो अनुरोध है कि आप उन वचनों को ध्यान पूर्वकता से पढ़ें। Exodus chapter 15 verses 3 to 6. निर्गमन की पुस्तक 15 3 to 6 अंकल 15 verses 3 to 6. 15 का 3 से 6 तक। यहाँ पे इस तरह से लिखा, हाँ,
यह यहोवा यहोवा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर Thank you देता very है। much. Thank you very much. You see, I like this phrase. उसको समुद्र में फेंक दिया. You see, that is verse 3, isn't it? समुद्र में फेंक दिया. You see, he threw them into the Red Sea. They are the most powerful nation in the whole world at that time. So to Pharaoh and his 700, I think the best of his 700 chariots of warriors chased the children of Israel. What happened to them? The best of those people, the Lord God, samudra mein fek diya. You see what a powerful God is our God. और देखिए मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। मैं समझता हूं कि ये फिरौन राजा के 700 उन सूरवीर थे जो इस्राएलियों का पीछा करते हुए लाल समुद्र तक आए, लेकिन उनका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने, जो महाप्रतापी है, यहोवा जो योद्धा है, जिनमें लिखा हुआ है, उसने उन महारथ बलियों को, जो फिरौन के सबसे सूरवीर माने जाते थे, You see, कहां फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। कितना महान हमारा परमेश्वर है। You see, in verse 6 it says, your right hand, O Lord, shattered the enemy. Your right hand, just one hand, destroyed the whole enemy. देखिए मेरे प्यारो, हम देखते हैं वचन 6 का आखिरी भाग में लिखा हुआ है, हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। You see, that is the omnipotent God who is our God, brothers and sisters, today. आज मेरे प्रियो, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसमें हम विश्वास करते हैं, वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। You see, हालेलुया। our omnipotent God is an all-powerful God, all-knowing God, and all-loving God. और देखिए मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है और सर्व से ज्यादा प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। You see, now there's another good, beautiful verse in John's Gospel, chapter 12, verse 31. यूहन्ना 12 का 31 हम लोग देख लेते हैं। John's Gospel, chapter 12, verse 31. यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 का 31, इस अद्भुत वचन को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इस तरह से लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। Thank you. इस संसार का क्या? सरदार निकाल दिया जाएगा. You see, yes. The prince of this world will be driven out, and this the Lord said before his death on the cross of Calvary. और मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर इस बात को क्रूस पर चढ़ने के बाद हम इस बात को देखते हैं, प्रभु कहते हैं अब क्या होगा? संसार का न्याय होगा, और लेकिन इस संसार का जो सरदार है वो क्या होगा? फेंक दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। You see, now the Lord Jesus Christ himself was about to take that judgment which I and you deserved, that judgment for our sins. मेरे प्यारो, हमारे पापों के लिए उस न्याय को, जो मुझे और आपको उस न्याय का जो परिणाम है वो भुगतना होता। All right, I have another question for you. एक और सवाल मेरे पास आपके लिए है। Before Satan could come to the world, Satan and his followers, his demons, where were they? और शैतान इस संसार में आने से पहले और उसके जो बाकी जो दुष्ट आत्माएं हैं जो उसके साथ हैं, वो संसार में आने से पहले कहां पर थे?
Anyone can answer. Unmute and answer. स्वर्ग में। Swarg mein. Beautiful. बहुत अच्छा Beautiful. जवाब। Beautiful. All right. तो स्वर्गदूत ही तो शैतान हुए। Swarg. He was one of the angels. He was the most beautiful angel among all the angels God created. मेरे प्यारों, इस शैतान कहाँ था? पहले स्वर्ग में ही था, और जितने भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया, उन सब से अति सुंदर और शक्तिशाली दूतों में से कौन था? इस शैतान सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर स्वर्गदूत था। But God threw him away from heaven because he wanted to be like God. लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे इसलिए स्वर्ग से बाहर लात मार के बाहर फेंक दिया क्योंकि वो परमेश्वर के स्थान लेना चाहता था। And then he had some angels that followed him. They were also sent away from heaven. और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दूत भी थे जो उनको उसके पीछे चलते थे, उनको भी परमेश्वर ने स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। And on the cross of Calvary, the Lord Jesus Christ, death defeated and put to shame all the powers of darkness. और इसलिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में जहां पर हम लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर इन जो अंधकार की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। That's right, kullam kulla. You see, not only did the Lord throw him away from heaven, but even on earth, the Lord defeated him on the cross of Calvary. और केवल इतना ही नहीं कि प्रभु ने उसे स्वर्ग से ही निकाला हो, वरन हम देखते हैं धरती पर भी उस कलवरी की क्रूस पर भी प्रभु ने क्या किया? उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना, उसे हराया है। Let's read some more verses to understand this very clearly from Colossians. आइए हम कुछ वचनों को कुलोसियों की पत्री से पढ़ लेते हैं इस बात को अच्छे समझने के लिए। Second chapter of Colossians, verses 14 and 15. हम दूसरा अध्याय कुलोसियों का उसका 14 और 15। यहाँ पे इस तरह लिखा, read, और read. विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं का अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुना। Thank you very much. You see, that's what Deepu said, kullam kulla. You see, Yes. what is written here? He disarmed the powers and authorities of evil. और हम यहाँ पर देखते हैं कि बुरी आत्माओं को, बुरी शक्तियों को क्या किया? अधिकारों को उसने उतार फेंका है। He was able to remove the power of these authorities, which is the evil spirits, the demons, Satan. He's removed their power on the cross of Calvary. हम देखते हैं कि उस कलवरी के क्रूस पर से उस परमेश्वर ने क्या किया है? उन शक्तियों को, उन अधिकारों को अपने ऊपर से उनको उतार फेंका है और खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। That is why the apostles like Apostle Paul and Peter and John, they were able to drive away the evil spirits. They were able to execute so much power in themselves and heal the sick. और इसलिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की इसी सामर्थ्य, इसी कार्य के द्वारा हम देखते हैं प्रेरितों में से जैसे पतरस है और भी प्रेरित हैं, पौलुस है, इन लोग जो है बीमारों को, दुष्ट आत्माओं को उसी अधिकार के सदोषी सामर्थ्य से निकाल पाए हैं, उनको हटा पाए हैं। Before the cross of Calvary, none of them had that power to do it. और क्रूस पर आने से पहले हम देखते हैं कि किसी के पास वो शक्ति नहीं थी। But on the cross of Calvary, the Lord Jesus Christ this verse says, verse 15 says, made a public spectacle. Spectacle meaning, for example, we have the Independence Day, August 15th. You have the Republic Day, January 26th. What happens in Lal Killa? What happens in Delhi? You have the parade that happens at 6 o'clock in the morning, right?
And if the lot of spectators come there to sit and watch, the army, the navy, the air force, the NCC, that is the school children, all are doing a parade and they're walking past the president, they're walking past the prime minister. That is called a public spectacle. Now, this is what the Lord Jesus Christ did on the cross of Calvary. He made a public spectacle of defeating Satan and all the evil spirits. और हम लोग देखते हैं प्यारों कि प्रभु ने क्या किया है कि जो लोग थे उनको सार्वजनिक रीति से परमेश्वर ने क्या किया है, उनको लोगों के सामने दिखाया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं सामान्यतः अपने देश में 15 अगस्त के दिन जिससे स्वतंत्रता दिवस होता है और गणतंत्रता दिवस जिस 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग सुबह के समय में मॉर्निंग टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, सुबह में हम देखते हैं लाल किला पर और भी भारत के भिन्न मुख्य स्थानों पर तिरंगा फहराया जाता है। और उसी के दरमियान जो है झांकियां निकलती हैं, है ना, नेवी की अलग निकलेगी और जो एयरफोर्स की अलग निकलेगी, मिलिट्री वालों की अलग निकलेगी, इत्यादि जो झलकियां हैं, है ना, झांकियां हैं, वो निकलती हैं। और वहां पर कई सारे नेता जनता जनार्दन बैठी रहती है उनकी इन झांकियों को झलकियों को देखने के लिए। इसको कहते हैं कि पर उस शैतान का प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, उनका जो तमाशा बनाया, उनकी झांकियां निकाल दी हैं। You see, these verses that we read in Colossians chapter 2, 14 and 15, what does it mean to me and you, brothers and sisters and dear believers? और मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं, ये जो तमाशा प्रभु का वचन कहता है, या जो वचन जो हमसे आज कहते हैं प्रियो, इसका मतलब हम विश्वासी होने के नाते हम पर क्या फर्क पड़ता है। You see, listen very carefully. No matter how dark the life is for us, we don't know what's going to happen tomorrow, day after tomorrow. I don't know how to plan. I don't know what to do. I don't know where to go. I don't know how to manage tomorrow, the day after. However dark the next day is, or however dark the future is, however dark the life feels, goodness, light, and hope will always be there for those who believe on the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Amen. Yes. इसलिए मेरे प्यारो, मेरे और आपके लिए आप लोग ध्यानपूर्वकता से सुनिए, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना कि इस संसार में चाहे कितना भी अंधकार में हम लोग जीवन में क्यों ना चल रहे हो, इस संसार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम नहीं जानते अगले क्षण क्या होने वाला, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और किस प्रकार की परेशानी दुख दुविधा में हम लोग पड़ जाएंगे, हम में से कोई नहीं जानता, किसी को निश्चित पता नहीं है। लेकिन इस चीज को ध्यान देना प्रियो, जो भी विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के जो उस क्रूस पर काम किए हुए, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो कार्य किया उसको समाप्त कर दिया है, जो अंत और समाप्त किया हुआ कार्य पर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए प्रभु का वचन कहता है इस धरती पर जो कुछ भी होता है वो उनकी हानि के लिए नहीं होगा, वो उनका परमेश्वर ने पहले से ही तमाशा बना दिया है। वो प्रभु की ओर से वो हम सब के लिए एक छुटकारे का, और प्रभु ने हमारे जीवन में जो कुछ भी घटे तो उनको एक तमाशा बनाया है। You see, God's omnipotence is more powerful than all our weaknesses, be it our health weakness, be it our financial weakness, be it our ministry weakness, be it any kind of weakness. The omnipotence, the all-powerful God is that power of God is more powerful than all our weaknesses. और मेरे प्यारों, हम लोग इस चीज को समझना, हमारी जितनी भी कमजोरियां हैं, जितनी भी जो है हमारे अंदर कमियां खूब खामियां हैं, उन सब के ऊपर मेरे प्रियो इस चीज को स्मरण रखना है, जो हमारा परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, हमारी कितनी भी कैसी भी कभी भी कितनी भी प्रकार की कमजोरी क्यों ना हो, उसमें हमारा परमेश्वर का शक्ति, हमारा परमेश्वर का शक्तिशालीता काफी है, काफी है, काफी है। You see, through his entire earthly ministry, the Lord Jesus Christ proved his omnipotent power over physical weakness of man or woman.
और हम देखते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के धरती पर जो उन्होंने सेवा कार्य किया, उसके द्वारा प्रभु ने अपनी उस शक्तिशालिता को, सर्वशक्तिमान का जो सामर्थ है, उसको प्रदर्शित किया है, प्रमाणित किया है। Let me give you a few examples. मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। The reason I'm giving you a few examples is, although it's time consuming, I'm giving you these examples is because our faith gets all the more firm when we read the word of God, when we read the word of God, our faith gets even more solidified. और इसलिए मैं वो आपको उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो जो परमेश्वर का वचन को पढ़ने के बाद में हमारा विश्वास है ना, वो और भी मजबूत और मजबूत होता चला जाता है। All right, Matthew's Gospel, chapter 8 and verse 2. मत्ती का सुसमाचार 8:2। Matthew 8:2। 8:2, yeah. मत्ती 8:2। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। Yeah, thank you. Enough. Thank you. You see, the first case in this chapter, you see the Lord healing the sick, particularly the leprous man. और हम यहाँ पर देखते इस वचन में, इस अध्याय में, प्रभु एक कोढ़ी से भरे व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। Now, read verse 14, same chapter. अभी उसी अध्याय का 14वीं आयत को पढ़िएगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने Correct. उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। All right. You see, here again the Lord Jesus Christ is healing Peter's mother-in-law. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो पतरस की जो सास थी, जिसको बुखार था, उसको चंगाई देते हैं। So two healings we have seen here, a leprous and then a mother-in-law who is sick of fever. और हम लोगों ने यहाँ पर दो चंगाइयों को देखा है। पहला एक कोढ़ से भरा व्यक्ति, दूसरा एक पतरस की माता जो उसको बुखार था। Let's read verse 16, same chapter. उसी अध्याय का 16वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। Thank you very much. You see, here this is another incident of when the people possessed by evil, by devils, the Lord removed those spirits from them. और उसके बाद हम लोग इस वचन में पढ़ते हैं कि जब संध्या हुई तो उसके बाद बहुत से लोगों को लेकर के आए जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और उन आत्माओं को अपने वचन से क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया। You see, the interesting part of this verse just now I realized as you were reading, as Jitendra was reading, the last portion of that verse says, and healed all that were sick. और वहां पर जो आखिरी भाग में लिखा हुआ है कि और सब बीमारों को चंगा किया। What was the sickness in these people? इन लोगों के अंदर कौन कौन सी बीमारी थी? Was there a sickness? क्या उनको कोई बीमारी था? Anyone can answer. What was the sickness? दुष्ट आत्माएं थी। Dushtatma. Now, does Dushtatma give you sickness? क्या जो दुष्ट आत्मा हमें बीमार करती हैं? You see, my daughter is a surgeon. No, my daughter is a doctor for the children. She's a surgeon. So many a times she comes and explains to auntie, that is my wife, many things, cases that happen in the hospital. और जो अंकल की बेटी हैं, वो एक सर्जन है बच्चों का, और बच्चों के बारे में जब वो घर पर आती हैं तो जो आंटी जी को अपनी वो बताती हैं उनके अस्पताल में बच्चों के साथ किस प्रकार के केसेस, घटनाएं घटित होती हैं। There are some cases where they come with the complaint that the child is sick,
But when you do all the tests, you will find there is no sickness that you can detect in the body. और उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जब कभी भी कुछ कुछ लोग इस ऐसे बच्चों को लेकर के आते हैं जो इस उनके पास आते तो हैं भिन्न भिन्न बीमारियों को लेकर के, लेकिन जब आप चेकअप करते हैं, जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बीमारी उनके अंदर नहीं पाई जाती जिसका इलाज किया जा सके। You see, they come complaining they are sick, but you take all x-rays, you take all scans, you do all physical examination. There is no kind of sickness in the body. और हम देखते हैं कि जब हम सभी प्रकार के जांच पड़ताल कर लेते हैं, तब एक्सरे कर लो या कोई और भी टेस्ट कर ले लो, लेकिन हम क्या पाते हैं, परिणाम क्या निकलता है, कोई बीमारी उन बच्चों के अंदर नहीं है जिसका इलाज किया जा सके। And then my daughter comes and discusses with my wife, and my wife immediately says, you know, it is not any sickness, but it is the evil spirit that makes people feel sick. और उसके बाद में जो अंकल की जो वाइफ हैं, पत्नी है, वो इस प्रकार से आंटी जी उनको जवाब देती हैं कि ये वो बीमारी नहीं है, उनकी शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन ये तो वो दुष्ट आत्मा है जो उन बालकों को, बच्चों को बीमार बना देती है। And then my wife advises my daughter, you pray for her, put your hand on her, pray for the little child, she will be fine. And it has happened in many cases. और उसके बाद में वो कहती हैं कि तुम्हें जरूरत है उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने की, अपने हाथ को बढ़ा करके उन पर प्रार्थना करें, और उसके बाद में वो बच्चा सही हो जाएगा। और ऐसा कई बार घटित भी हुआ। I'm sure you and I have heard, I've heard many times, and I'm sure you also have heard, many people complain saying that they're sick. They go to a hospital, they do all kinds of check, but the doctor said you're normal. There is no problem with you. They're still doing, sometimes the hospitals on account of making money do all kinds of check, but ultimately they find there is nothing wrong with you. और उसके बाद हम देखते हैं कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें जाकर के बच्चे जब बीमार हो जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कई डॉक्टर जो है पैसा बनाने के चक्कर में कई बीमारियों को, कई जांचों को लिख देते हैं। उनका चेकअप होगा, चेकअप होने के बाद में सब उनका परिणाम आता है तो उसमें कोई बीमारी नहीं, कोई लक्षण नहीं जिसका इलाज किया जा सके। ऐसी अवस्था में भी हम लोगों कई जगह कई लोगों को प्राप्त पाते हैं। It's not only in the children's hospital, but in the other hospitals also. But when adults are also being treated, many times it happens. They do all kinds of checks. I'm sure you also must have heard. We have done all kinds of check. I went to the hospital. I did all kinds of check, but I have not found anything. You know, the reason is because of the demons. Sometimes they get into us and they make you feel sick, though you physically are not sick at all. और यद्यपि मेरे प्यारो, केवल इतना नहीं कि बच्चों के साथ ही ऐसा घटित होता हो, वरन हम देखते हैं कि ये जो घटना घटित होती है वो और भी लोगों के साथ घटित होती है। जैसे कि युवा और जवान बच्चे लोग भी जब जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियों को, शिकायतों को लेकर के जाते हैं, जब वो बहुत प्रकार के जांच पड़ताल कर लेते हैं, चेकअप करवा लेते हैं, उसके बावजूद भी उनका कोई भी ऐसा परिणाम नहीं निकल करके आता जिसका इलाज किया जा सके, और उनका शारीरिक दुर्बलता, बीमार नहीं होती है, वरन उनको ऐसी दुष्ट आत्मा जो पीड़ित कर देती, पीड़ा महसूस करवाती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। You see, that is why this verse says, this verse 16 of chapter 8 of Matthew's Gospel says, he cast out the spirits with his word and healed all that were sick. There's no need for the Holy Spirit to write, no, healed all that were sick. The Holy Spirit could have written, he cast out the spirits with his word. That is all. That is enough. No, then we all know the demons are gone. But healed all that were sick, which means they thought that they were sick. They had a headache, they had a stomach ache, they had body ache. All that is caused, dear beloved brethren, by devils, by Satan and his evil people. They can cause all these traumatic experiences in one's life, but of course not in the case of believers, but for the others.
लेकिन मेरे प्यारों, इस चीज को विशेष ध्यान देना है कि कई बार इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग आते हैं जिनके जीवन में कोई बीमारियां नहीं होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रभु का वचन वहां पर जो लिखा हुआ है कि उसने दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाला, वही काम कितना ही लिखते। लेकिन उसके बाद में लिखा है कि उसने और भी सब बीमारियों को क्या किया है, चंगा किया है। वैसा इसीलिए क्योंकि परमेश्वर कि जो कई ऐसे लोग हैं जिनको शरीर में दर्द, पेट में दर्द, कई प्रकार की समस्या, शारीरिक दुर्बलता को लेकर के आते हैं, लेकिन जब जांच करने के बाद पता चलता है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है, हम पाते हैं इस बात इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर जो शैतान है ऐसे लोगों के जीवन में शारीरिक बीमारी के अलावा उनको इस प्रकार से बीमार बना देता है। लेकिन जब शारीरिक चेकअप होती, जांच होती, कोई बीमार नहीं होता। लेकिन शैतान का कोई अधिकार विश्वासी लोगों के जीवन में, विश्वासी बच्चों में प्रभाव नहीं आता है शैतान का। All right. Now, look at the next chapter, Matthew chapter 9 and verse 2. मत्ती उसका 9 का 2 हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 9 का 2। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। Thank you very much, sister. You see, here they bring to the Lord a person who was paralyzed, which means he cannot even move, he cannot walk, cannot use his hands, he cannot use his feet, he cannot use his body. So they put him in a bed or put him in some furniture and they bring him. The Lord, the omnipotent God, healed the palsy. और इसके बाद में हम इस वचन में क्या पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत से लोग एक लकवे के मारे को रोगी को, जिसका मतलब है वो व्यक्ति पूरी तरह से लकवे का ग्रसित है, चल नहीं पाता, लेट नहीं पाता, उठ नहीं पाता, सिर्फ खटिया पर पड़ा रहता है। और ये जो लोग हैं बड़ी चिंता करते थे और उसको उस खाट के सहित प्रभु यीशु के पास लेकर के आते हैं। और जब वो उसके पास लेकर के आते हैं तो प्रभु ने उनका विश्वास देख करके, कौन का, जो उसको लेकर के आए थे, उस लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुए। Read now Mark, the Gospel of Mark chapter 10 and verse 46. 10 का 46, मरकुस 10 का 46 हम लोग पढ़ेंगे। Mark वे chapter एरिहो में 10. Read आए, वे एरिहो में आए, और जब वह और उसके चेले एक और बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। Thank you. You see, here you read about the blind Bartimaeus, whom the Lord touched and healed and gave him his sight. और उसके वहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक बर्तिमाई जो जन्म से अंधा था उसको दृष्टि दान दिया। You see, two more examples we read. Now please remember, we are considering the sovereignty. We are considering the powerful, the omnipotent God. और इस बात को भूलना नहीं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान हैं, वो उस बात को हम लोग देख रहे हैं। You see, the God who's got power over all our weakness, over all our sickness. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, जिनका सबके ऊपर जो है अधिकार है, सामर्थ्य है। All right. Matthew's Gospel again, chapter 9, verse 18. मत्ती उसका 9 अध्याय का 18 हम लोग पढ़ेंगे। Matthew 9:18. यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। Thank you very much. You see, here we read how the Lord brought a young girl, a small daughter, back to life. She was dead and the Lord brought her back to life. और हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री, एक बच्ची को, जो उसकी पुत्री थी, एक सरदार की पुत्री थी, वो मर चुकी थी, उसको किस तरह से प्रभु यीशु मसीह पुनः जीवित दान देते हैं। All right. Which is the next person who was brought to life that we all know about?
और इसके बाद में फिर वो कौन सा अगला व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह पुनः जीवित किया है, वो कौन है? लाजर। Lazar. Excellent. Beautiful. बहुत अच्छा This जवाब। this sister is very, very attentive, and she's She is also she is- willing to ask some question, uncle. she's very knowledgeable. Yeah, definitely. Let her ask. I'll finish. Okay. Yes. Now, so that you find in John, we don't have to read it. John's Gospel, chapter 11 and verse 1. You have about Lazarus also. और इस बात को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि 9-11 वर्ष, Chapter 11, verse 1, the first verse. यस, और मत्ती 11 का 1 में हम लोग लाजर के प्रभु यीशु जिंदा करते हैं। John's Gospel 11 and 1. और यूहन्ना उसका 11 का 1। कैन आई रीड अंकल? Yeah, हाँ। please. हाँ, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। All right. Okay. So that we all know the case of Lazarus. He was sick and he died. The Lord came after 3 days. On the 4th day, the Lord brought him back to life from the sepulchre, from the cemetery. The Lord brought him back to life. और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक लाजर को जो वो मर चुका था, उसको हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसे जो है कब्र में से उसको पुनः जीवन दान देकर के पुनः जीवित लेकर के बाहर लाया। You see, these examples I highlighted here just to show you one fact, which is the omnipotent God is a God who's perfect in love and wisdom. और मेरे प्यारो, ये जो मैंने उदाहरण आपको दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं, इस बात को दर्शाने के लिए, सिखाने के लिए कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान। You see, the power of this omnipotent God is shown to us through his love and through his wisdom. और उसकी जो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति, उसके प्रेम और उसकी भलाई जो हमारे प्रति प्रभु करते हैं उसके द्वारा प्रकट होती है। All right, I think I'll stop here, and God willing, we'll continue next week. Now, मैं Deepu, समझता you were saying she wants to ask some questions. I don't know if I can answer, but she can ask. और अभी यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। प्रभु ने चाहा तो इसको हम आगे जारी रखेंगे। और अभी जो सवाल बहन ने पूछा था